So welcome students to another new video of SKR classes. Today we will be studying electricity chapter in physics, and in continuation of the topic of electric current we will be studying current. इलेक्ट्रिक सर्किट का जो हमने पिछले में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक सर्किट का जितना भी टॉपिक में हमने कवर किया था, क्या क्या था, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या क्या से कंप्रोमाइज होता है, व्हाट आर द थिंग्स विच आर नीडेड फॉर द completion of a basic electric circuit. So now in continuation we are going to study a current, the topic current in detail and briefly, and we are going slow because we need to teach you all since it is the beginning of the session. So we are trying to give you information in a little in a great quantity so that you can absorb it greatly. So now we will start the topic current. Now we have seen that what is current. So current is the flow of charge through a given area per unit time. So what is flow of charge? As we have discussed in our earlier lectures, that flow of charge is the moving of electrons from one place to another because of the potential difference present between the 2 points from where the current moves. So we have discussed flow of charge, that the moving of the charges between the 2 points, mainly the movement is from this side to this side, as we have discussed in the flow of charge. We will not go in detail in this lecture. In flow of charge, you can see our previous lectures for the flow of charge topic, that is with circuit topic. Now flow of charge through a given area per unit time. So what it wants to say the definition to us. Now we will understand that flow of charge through a given area per unit time. If you see that the definition in detail, I can also give you very not very great, but it will make you easy to understand about current. So we have studied about charge in the previous lectures. That charge is the more or fewer electrons in an atom than the protons. So the charge, what the charge wants to be stable. Anything in this world wants to be stable. Therefore, the charge also wants to be stable. Now, for being stable, the potential difference between 2 points makes the charge to move. So here we will see a great example, that is if we see that it is a large gate. Here we see that a large gate is if we see a hall, seminar hall, we can all consider a seminar hall which has a very large gate, and the people are standing in the columns and not the rows. People are standing in the columns. So how much people can enter through that gate in per unit time? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं हमसे कि ये एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि एक गेट है ये, और यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं. तो एक आदमी जब रश होता है, अगर हम एक और एग्जांपल लें तो आप समझ सकते हैं जब शॉपिंग मॉल्स खुलते हैं तो कैसे दौड़ते हैं सब, अगर जब बहुत छूट रहती है दौड़ने के लिए. तो वही हम कह सकते हैं एक एग्जांपल के तरह कि एक यूनिट टाइम में कितने आदमी उस शॉपिंग मॉल के गेट के अंदर घुस जाते हैं कि उनको छूट पाने के लिए. तो वैसे ही हम भी करंट को भी ऐसे ही समझा जा सकता है. अगर हम देखें यहाँ पर तो करंट को भी ऐसे ही समझा जा सकता है. ये मान लीजिए एक सर्किट का एक पाथ हो गया, ठीक. ऐसे ये सर्किट है, ये एक सर्किट है जिसमें बैटरी लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, एक यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, एक यहाँ पर स्विच लगा हुआ है. मान लेते हैं यहाँ पर एक स्विच है, ठीक. तो हम इसको एक हिस्सा कट करके एक ये ले लेते हैं, ठीक. ये एक एरिया हो गया, इसका एक हिस्सा यहाँ से हमने कट कर लिया, छोटा सा एकदम हिस्सा यहाँ से हमने देख रहा है. अब हम इसको ऐसे देख सकते हैं. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक यूनिट टाइम में, मतलब पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस इस एरिया से फ्लो कर जाते हैं, यानी कि इस एरिया में दौड़ के या फिर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं.
तो वो एक यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने चार्जेस फ्लो कर जाते हैं इस एरिया से, उसी को हम कहते हैं करंट, उसी को हम कहते हैं करंट। अब जब ये मूविंग होता है तो फ्लो ऑफ करंट हो जाता है। तो फ्लो ऑफ करंट आपसे अगर कोई पूछा कभी तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि जब मूवमेंट ऑफ चार्जेस through a circuit is called the flow of current. When the circuit is complete, then it is called the flow of current. अगर आपसे कभी भी ये पूछता है तो अब हम अपने नए बुलेट पॉइंट पे आएंगे जो कि है SI यूनिट ऑफ करंट। तो जो भी आप टर्म देख लेते हैं फिजिक्स में, जितने भी टर्म होते हैं सबका कुछ ना कुछ SI यूनिट होता है, क्योंकि ये भी कुछ टर्म से कंप्रोमाइज करके बनाए जाते हैं। तो हम करंट का पहले फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है, जो कि एग्जाम पैटर्न व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, बोर्ड एग्जाम ले लीजिए, वहां पर ही बहुत सारे ये आ जाते हैं। Now if when we will end this chapter, we will ask you very much, we will give you a set of questions daily in the when the chapter will be finished, to make your concept stronger and stronger of what you have understand in this video and our lectures. So we will discuss about the formula. Then therefore the formula is I is the representation of current. Now if we move forward, I is flow of charges per unit time. Therefore flow of charges is represented by Q, that is charge is represented by Q, and T is time is represented by T. So therefore this is the formula. Now here I stands for current, and if there is current and in the sets of questions, if you are given the other terms of current like A, this is milliampere. If first I think that we should study about ampere, then I will tell you about milliampere. Here we will see first that SI unit of current is coulomb per second. I is represented as C. Now I we can write is Q by T. So Q is charge whose SI unit is coulomb, and T is time whose SI unit is second. Now we can also write is coulomb inverse second, or coulomb per second also we can say this, coulomb inverse second or ampere. So we can also say it as coulomb inverse second, coulomb per second और एम्पियर। कहा तीनों बात एक ही है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर आपको एम्पियर ही मिलेगा, बहुत ही कम जगह पर आपको मिलेगा कूलम पर सेकंड या फिर कूलम इनवर्स सेकंड। लेकिन आपसे ये आपको हमेशा याद रखना है कि कूलम इनवर्स सेकंड से ही बनता है वो। आपको डेरिवेशन आ जाएगा इस फॉर्मूला का, तो आपको कैसे कैसे करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस करंट का आपको सबसे पहले लिखना है कि व्हाट द डेफिनेशन ऑफ करंट इज, तो वहाँ पर हम लिखेंगे आई, तो वहाँ पर लेट कर लेंगे, करंट को आई लेट कर लेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि ये डेफिनेशन कहता है कि द करंट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यू हो जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज और टी, ऐसे ही डिराइव कर लेंगे हम इस फॉर्मूले को, तो ये डेरिवेशन भी हो जाएगा फॉर्मूला का। और आपको कूलम इनवर्स सेकंड और ये भी याद रखना है कि कूलम पर सेकंड और एम्पियर दोनों होता है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है ये चीज़। Now if we move forward towards our next topic, that is 1 ampere of current। अगर हमसे कभी भी पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो 1 एम्पियर को डिफिनेशन के लिए हम सबसे पहले हम इस डिफाइन को पढ़ लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। 1 ampere of current is defined as the flow of 1 coulomb of charge through an unit area in 1 second। So यहाँ पर कहना चाह रहा है ये हमसे कि 1 एम्पियर का जो करंट होता है वो 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू एन यूनिट एरिया इन 1 सेकंड, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। जैसे कि यहाँ पर एम्पियर हम जानते हैं कि एम्पियर इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू सी बाई एस, 1 ए इज इक्वल टू 1 सी बाई 1 जे, ये लिख सकते हैं। सिंपल से हो गया। 1 एम्पियर ऑफ चार्ज इज 1 कूलम ऑफ is the flow of 1 coulomb of charge through in 1 second, that is 1 ampere is equal to 1 coulomb inverse second, ये भी कर सकते हैं, दोनों हो सकता है आपका। तो ये बेसिकली हो गए इसके डेफिनेशन, और करंट से रिलेटेड यहाँ तक जितने टर्म थे, जो फैक्ट्स थे करंट पे, वो यहाँ पर डिस्कस हो गया।
अब हम करेंट्स के टाइप के बारे में जानेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ करंट। सो टाइप्स ऑफ करंट हमसे क्या कहना चाहता है? द कन्वेंशनल करंट और रियल करंट। यहाँ पर दो तरह के करंट होते हैं और हम मेनली 10th तक तो कन्वेंशनल करंट ही पढ़ना होता है और 10th तक ही बच्चे कन्वेंशनल करंट के बारे में ही जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, यही हम जानते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर जानेंगे इसका जो कंक्लूजन होगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा उसका कंक्लूजन क्या क्या है। तो कन्वेंशनल करंट हमसे ये कहता है कि द करंट इन विच द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसी कैसी को कॉम्प्रोमाइज करके बनता है। तो एक सेल होता है, उसमें मेन सेल के बिना तो कोई चल ही नहीं सकता क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तो कोई एक वेरीफाइड उसको मिलेगा नहीं कि कहाँ से कहाँ तक मूव करना है। तो ये प्लस माइनस हो गया। अब हम आगे देखें तो यहाँ पर एक ये हो जाएगा, यहाँ पर हम एक स्विच ले लेते हैं, प्लग की ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक बल्ब ले लेते हैं। ठीक है, बल्ब का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैची कैची का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। तो ये बल्ब हो गया, यहाँ पर प्लग की हो गया, हमने इसे ऑन किया। तो हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड हमें हमेशा सिखाया गया है कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे करंट। तो यही होता है आपका कन्वेंशनल करंट फ्लो, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, यही चीज होता है आपका। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब पॉजिटिव एंड से, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी या फिर सेल जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट को, वो हो जाता है आपका कन्वेंशनल फ्लो। हमें हमेशा इधर से इधर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कन्वेंशनल करंट आया कैसे? क्योंकि जब पिछले पुराने समय में जब बहुत ना साइंस वो डेवलप नहीं था, when the science was not developed so much, therefore the scientists of that time assumed that the current that the positive charges are also there and the negative charges are also there. But we know that only electrons flow, not the protons, because the protons are in the inner side of the atom, that is the न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर रिएक्शन में ये हो सकता है, ये केमिकल में कभी नहीं हो सकता है क्योंकि केमिकल्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि वो उसी में जो इलेक्ट्रॉन्स का ये होता है सेल होता है, या फिर आप कह सकते हैं उसका जो ऑर्बिट होता है उसमें ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। आउटर सर्किट में जहाँ पर लेस मोर फ्यूअर उसी से चार्ज होता है, जो कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था उस बात को। तो ये हो गया आपका कन्वेंशनल करंट। अब जो असली करंट यानी रियल करंट होता है क्या? द करंट इन विद द फ्लो ऑफ चार्जेस इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल है, जो कि असली में होता है, यही चीज होता है असली में। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा पॉजिटिव एंड की तरफ ही फ्लो करेगा। आप जानते हैं, हमने पढ़ा था कि ये लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ पर अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक ये होता है कि हमने प्लग की लगाया, बैटरी लगाया, विच है पॉजिटिव नेगेटिव and we started up we plugged the key. Now there is the flow of electrons from this side, therefore the real current is this side. But students, but there is also a problem in it. Whenever you study about the whenever you study about the current, we have to take basically the conventional current and not real current till 10th class, because we have not been studying real current. I have tell you about the fact that is present here. So this is about the real current. The flow of electrons from the negative terminal to the positive terminal is only the real current flow of real current या फिर real current flow. तो यहाँ पर हमने ये सब टॉपिक के बारे में जाना जो कि करंट था, इलेक्ट्रिसिटी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज करंट। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपको और अच्छे टॉपिक्स और अच्छे चीज़ें पढ़ाने का। और लाइक कर दीजिएगा इसे वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इससे इच्छा है, जिनको पढ़ना है या फिर जिन्हें भी एजुकेशनल इंटरेस्ट है। तो अब हम बता देते हैं कि अगले टॉपिक में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो अगले टॉपिक में हम मेनली डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ने पूछा भी ऐसा कि हमने अभी तक ये डिस्कस क्यों नहीं किया है
मेजरमेंट हमने क्यों नहीं डिस्कस किया अभी तक, मेजरमेंट्स ऑफ करंट, मेजरमेंट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो चीज़ यूज़ होते हैं, जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं मेजरमेंट ऑफ करंट या फिर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो भी मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, कैसे फंक्शंस करते हैं, क्या होता है उसका, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। तो बस एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो पे बने रहने के लिए, और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।